السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے نافرمان بطخ۔ آج اس کہانی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک نافرمان بطخ کا بچہ جو بہت اس کی نافرمانی کرتا تھا اور اس نے کیا انجام پایا، آئیے اس کہانی میں سنتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت جنگل تھا جہاں پر بہت خوبصورت ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں پر بطخ اپنے بچوں کے ساتھ روز تیرنے آتی تھی۔ بچے بہت خوشی کرتے تھے جب وہ تیرنا سیکھ گئے اور بطخ ماما ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ سب سے چھوٹا بچہ جو بطخ ماما کے ساتھ تیرتا تھا وہ اکثر یہ سوال کرتا تھا کہ میں دریا کے اس کنارے پر کیوں نہیں جا سکتا؟ تو بطخ ماما ہمیشہ یہ کہتی کہ دیکھو، وہاں جانا خطرے سے کم نہیں ہے۔ وہاں پر ایک مگرمچھ رہتا ہے جو ہمارا دشمن ہے اور وہ تاک لگا کے بیٹھا ہے کہ کب بطخ کے بچے یہاں آئیں اور میں ان کو ہڑپ کر لوں۔ بطخ کا بچہ خاموشی سے یہ بات سنتا، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات کرتا کہ ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے، اس کنارے پہ کیوں نہیں جا سکتے۔ ایک دن جب بطخ ماما اپنے سارے بچوں کو لے کے نہر میں اتری تو وہ بہت مزے سے موسم سے لطف اٹھاتے ہوئے تیر رہے تھے کہ ایک دم بطخ ماما کو خیال آیا کہ سب سے چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے سارے بچوں کو باری باری گنا اور دیکھا وہ سب بہت خوشی سے تیر رہے تھے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر خوشی منا رہے تھے۔ اس نے ہر جگہ اپنے بچے کو تلاش کیا، آوازیں دیں، لیکن چھوٹا بچہ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر نہر کے کنارے پر آئی جہاں اس کا گھر تھا اور وہاں آ کے بیٹھ گئی۔ جب بچوں نے اپنے ماما کو ایسے دیکھا کہ وہ نہر کے کنارے پر اپنے گھر کے پاس جا کے بیٹھ گئی ہے تو وہ سارے اپنے ماما کے پاس واپس آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ چھوٹا بچہ اس کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ بہت پریشان ہے اور رات ہونے کو ہے، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ یہ سن کر باقی بطخ کے بچے بھی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ہمارے ساتھ تو گیا تھا، کہیں وہ نہر کے اس طرف تو نہیں چلا گیا جہاں پر ماما نے منع کیا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دور سے ان کو ایک بلی آتی دکھائی دی۔ یہ وہی بلی تھی جو روز ان کے ساتھ آ کر کھیلتی تھی اور وہ بہت خوش ہوتے تھے اس کے ساتھ کھیل کر۔ بلی نے جب ان کو پوچھا کہ ان کا چھوٹا بھائی کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ تو بلی نے کہا، ارے میں نے تو اس کو دور کنارے پہ دیکھا تھا، وہ ایک مگرمچھ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سارے بطخ کے بچے چونک گئے اور کہا، کیا وہ مگرمچھ کے ساتھ تھا؟ لیکن وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو بلی نے کہا، میں تو خود حیران ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی، وہ تو بڑے مزے لے لے کے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ لیکن باقی سارے بچے فوراً اپنی ماما بطخ کے پاس بھاگے گئے اور بتایا کہ وہ تو مگرمچھ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کے بطخ ماما بہت پریشان ہوئی اور زور زور سے رونے لگی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ وہ دوست نہیں بن رہا تھا، وہ سب سے بڑا دشمن تھا بطخ کے بچوں کا، کیونکہ جب بھی بطخ کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ اس کے سارے انڈوں کو کھا جاتا تھا یا بطخ کو
पता भी नहीं चलता था और वो कैसे उसकी गैर मौजूदगी में आकर उसके अंडे उठाकर ले जाता था। दूसरी तरफ जब बतख का सबसे छोटा बच्चा नहर के किनारे पर पहुंचा जहां उसकी बतख मामा ने उसको मना किया था, तो उसने देखा एक मगरमच्छ वहां पर तैर रहा है। उसने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा। अरे तुम यहाँ कैसे दोस्त? मुझे देख के तुम्हें बहुत खुशी हुई, ये मगरमच्छ ने बतख के बच्चे को कहा। बतख का बच्चा उसको देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने इससे पहले इतनी बड़ी चीज़ नहीं देखी थी। उसने उसको पूछा कि आप यहाँ कब से हैं? तो मगरमच्छ बड़ी मासूमियत से बोला, मैं तो यहाँ कब से हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई यहाँ रहता ही नहीं। मैं बहुत अकेला हूँ, कोई दोस्त ही नहीं बनता। मैं जिससे भी दोस्ती करना चाहता हूँ वो दूर हो जाता है। ये सुनकर बतख का बच्चा फौरन उसके आगे आया और कहा, मैं आपका दोस्त बनूंगा ना, मैं आपका दोस्त बन जाता हूँ। आज से मैं आपके साथ यहाँ खेला करूँगा। ये सुनकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और उसने बतख के बच्चे को फंसाने के लिए कहा, अरे तो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। बतख का बच्चा बोला, आपका घर कहाँ है? उसने कहा, वो देखो सामने उस किनारे पर, और वहीं पे मैं रहता हूँ और मेरे पास बहुत सी चॉकलेट भी हैं। बतख का बच्चा बोला, मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है, वो मुझे मिलेगी? तो मगरमच्छ ने कहा, हाँ ना, क्यों नहीं, चलो साथ चलते हैं और मुझसे अब दूर नहीं होना। बतख के बच्चे ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अब मैं आपका दोस्त बन गया हूँ। ये कहकर वो मगरमच्छ के साथ उसके घर चल दिया। दिल में वो सोचता रहा कि मेरी मामा ऐसे ही मुझे यहाँ नहीं आने देती थी, ये तो इतना अच्छा है और यहाँ तो कोई ऐसा खतरा भी नहीं। पता नहीं मेरी मामा मुझे क्यों रोकती थी, ये भी कोई डरने की बात है। और मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं छुप के यहाँ आ गया हूँ। अब मुझे कोई यहाँ आने से रोकेगा भी नहीं, जब मैं अपनी मामा को ये बताऊँगा कि मैं कितना बहादुर हूँ और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद मेरी मामा यहाँ पानी ज़्यादा होगा इसलिए डरती थी, लेकिन यहाँ तो सब ठीक है। इस तरह की कई बातें सोचता हुआ वो तैरता रहा। जब वो मगरमच्छ के साथ किनारे पे पहुंचा तो मगरमच्छ को कहने लगा कि कहाँ है चॉकलेट्स? तो मगरमच्छ ने कहा, चॉकलेट्स तो मेरे मुंह के अंदर हैं। जब मैं आहिस्ता से मुंह खोलूँगा तो उसके अंदर आ जाना और देखना कि बहुत सी चॉकलेट्स आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और मैं उनको मुंह के अंदर रखता हूँ। ये सुनकर बतख का बच्चा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या ये सच है? मैंने इससे पहले कभी भी चॉकलेट्स मुंह में नहीं देखी। उसने कहा, पर मेरे मुंह में तो है। अब तो बतख के बच्चे की खुशी की इंतहा ही न रही। उसने कहा, मैं आपका मुंह में आ सकता हूँ? मैं आपका मुंह देखना चाहता हूँ खोल के कि वहाँ कितनी चॉकलेट्स हैं और मैं सारी चॉकलेट्स खा लूँगा। तो मगरमच्छ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मुंह खोलूँगा और तुम अंदर आ जाना, लेकिन एक शर्त है। बतख के बच्चे ने कहा, वो क्या शर्त है? तो मगरमच्छ ने कहा, शर्त ये है कि जब मैं मुंह खोले रखूँगा तुमने अंदर ही रहना है और जब तक चॉकलेट्स नहीं आएंगी बाहर नहीं आना। तो बतख के बच्चे ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब थोड़ी देर के बाद मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि भूख तो बहुत लगी हुई है और किस तरह बतख के बच्चे को अपने काबू में करना है, और वो समझ चुका था कि ये मेरे जाल में फंस चुका है। उसने मुंह खोल दिया और
बतख का बच्चा उसके मुंह में चला गया। अब वो वहाँ पर चॉकलेट्स को तलाश करता रहा, लेकिन चॉकलेट्स तो कहीं नहीं थी। उसने आवाज़ दी, चॉकलेट्स कब तक आएंगी? तो मगरमच्छ कहने लगा, इंतज़ार इंतज़ार। थोड़ी देर के बाद मगरमच्छ मुंह खोल के ऐसे ही लेटा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतख को ये एहसास हुआ कि मगरमच्छ का मुंह बंद होने लगा है। और साथ ही अभी जब वो बाहर निकलने के लिए छलांग लगाता, इससे पहले मगरमच्छ ने अपना पूरा मुंह बंद कर दिया। बतख का बच्चा मगरमच्छ के मुंह के अंदर चिल्लाता रहा, बोलता रहा, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, लेकिन मगरमच्छ ने उसकी एक भी बात ना सुनी और इस तरह उसको पूरे का पूरा खा लिया। दोस्तों, इसका इखलाकी सबक ये है कि जब माँ बाप किसी चीज़ से भी मना करते हैं, किसी भी बात से मना करते हैं, रोकते हैं, तो उस बात के पीछे कोई हकीकत ज़रूर छुपी होती है, कोई बेहतरी ज़रूर छुपी होती है। उसको मान लेना ही बेहतरी की अलामत है, उसको मान लेना खैर की अलामत है, उसमें खैर ही खैर है। यह उसकी नाफरमानी की सज़ा थी जो बतख के बच्चे को मिली। ये ना सिर्फ कहानी बच्चों के लिए है, बल्कि तमाम लोगों के लिए है जिनके वालिदैन खयात हैं। उन सब के लिए है कि वालिदैन की बात मान लेने में ही खैर है, और वालिदैन की नाफरमानी करने का अंजाम ऐसा होता है जैसे बतख के बच्चे का हुआ। कभी कभी सच्चाई खुल के सामने नहीं आती, बल्कि सच्चाई बहुत सारी बातों में छुपी होती है जो वालिदैन वक्त से पहले नहीं बताना चाहते, और जिस चीज़ से वो रोकें उसे मान लेना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मेरी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।